کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور کیونکہ میں اس وقت خطبہ جمعہ بھی دے رہا ہوں وہاں مرکزی مسجد کے اندر ماشاءاللہ، اور 1996 سے لے کر ابھی تک کنٹینیو مختلف مساجد میں خطبات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ لگتا ہے کہ میں نے ایکچولی وہ چیزیں نہیں پڑھی جو میں نے صحیح طور پہ پڑھنی تھی، اور جس کو میں نے لوگوں کو دعوت دینی تھی، کیونکہ مجھے کچھ چیزیں احادیث کی روشنی میں ایسی لگ رہی تھی جو کنٹروورشل ہے۔ ان لوگوں سے میرا اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ مجھے لاسٹ ایئر میری دستار بندی کر کے مجھے اسناد وغیرہ دے کے مجھے فارغ کر دیا، مگر میں اپنے سکون قلب کے لیے پھر میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی مسجد مزید لوں۔ مسجد اس وقت بھی میرے پاس مجھے 5000 لے لو 10,000 لے لو، مگر میرا ایک خطبہ مجھے دینے دو اس بات کے اوپر جو کتابوں اللہ ہاں وہاں مگر رونگ جاؤں گا تو میں ڈبل جرمانہ۔ اور انہوں نے تو بالکل باقاعدہ پری پلان اسلام کو ڈیمولش کرنے کے لیے ہر طرح سے انہوں نے اپنی کاروائی کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہر جگہ کا پیچھا کیا ہے۔ آپ جدھر بھی جائیں گے نا، اور جدھر بھی یہ چالیں چلیں گے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضرور بے نقاب کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ 3-4 جمعے نے پڑھا، میں نے فون کیے تھوڑا کہ بندے یار ہمارے لوگ جو آتے تھے انہوں نے کہا ہم تو اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ میں کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پڑھے یا نہ پڑھے، میں نے یہاں ممبر کا جو تقدس ہے اس کو کمال نہیں ہونے۔ آپ نے داخلہ لینا، مجھے دیکھا کہ شیخ صاحب خیر ہے، میں نے کہا جی اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس نے مجھے اس طرح دیکھا کہ یہاں تو بچے آتے ہیں کہ چلو پڑھ بھی جاؤ گے پل بھی جاؤ گے، تو بندہ نتیجہ سنا رہے ہیں تو ساڑھی نہیں سوچ کر لیں گے۔ جو سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے ہیں جو لوگ، وہ صوفی ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے اسلام کے لیے نہ آواز اٹھائی ہے، نہ جہاد کیا ہے، نہ انہوں نے ایسی کوئی جماعت تیار کی ہے جو واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے اوپر کام کر سکے، اور حق کے لیے کوئی ایسی جماعت تیار ہو سکے جو واقعی اپنی زندگیوں کو قربانی سے عبارت کر کے لوگوں کے لیے وہ عقائد اور نظریات لے کے آ سکے جو کتابوں سے ہوتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ میں کہتا ہوں اتنا بہادر دلیر ہمت والا، میں کہتا ہوں پہاڑوں سے زیادہ ہمت ہے انجینئر مرزا محمد علی کی، اللہ، کیونکہ اس وقت پورا پاکستان اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سکول آف تھاٹ ہیں ان کی ٹانگیں، ان کی کانپیں ٹانگ گئی۔ میں یہ کہوں کوئی گھر میں کھانا کسی کی دعوت ہو رہی ہو، کسی شادی پہ بیٹھے ہو، کسی منگنی پہ بیٹھے ہو، اور کسی بھی جگہ پہ 4 دوستوں کی گیدرنگ ہو، انجینئر صاحب کی گفتگو کے بغیر یا ان کا ٹاپک ڈسکس کیے بغیر نہ مجلس شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ اوے نبی نو پہ گئی، یہ سارے نبی نو پہ گئے، یعنی باپوں کی نسبت اور مال کی کمائی اور حرام کی کمائی سے نبی کو پہ گئے، اور چھڑاؤ نا نبی کو۔ اگر 1 سال کا میں نے کہا اگر مجھے کوئی خطبے کے لیے ٹائم دے گا کوئی ایسی مسجد تو میری مرضی کی ہو، تو ہم 2 لاکھ روپے کا چیک ایڈوانس دیں گے، پیمنٹ پہلے لے لیں خطبے کے لیے ہمیں بلائیں۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی محمد افضل اسلام۔ محمد افضل اسلام بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ سہیوال سے۔ سہیوال، ماشاء اللہ تعالیٰ، ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں آپ کو۔ افضل بھائی جی جی کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا ایکچولی کام ہے ہول سیل کپڑے کا، اپنا بزنس کرتے ہیں؟ بزنس ہے میرا، شیخ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ جی 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 صحیح ہو گیا۔ اور آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ ایجوکیشن یہ ہے کہ میں گریجویٹ ہوں ماشاء اللہ، اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے، درس نظامی کیا ہے، اس کے علاوہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں ماشاء اللہ، اور میرا 11-12 سال سے ہومیوپیتھک کلینک کا بھی ایکسپیرینس ہے، زبردست۔ اس کے علاوہ میں جو نا ریلیجیس تھاٹ کے اندر یا ریلیجیس جو بھی ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ہر وقت رہتا ہوں تاکہ ہر چیز کی معلومات بہتر سے بہتر طریقے میں سے ہو، اور کیونکہ میں اس وقت خطبہ جمعہ بھی دے رہا ہوں وہاں مرکزی مسجد کے اندر ماشاءاللہ، اور 1996 سے لے کر ابھی تک کنٹینیو مختلف مساجد میں خطبات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔
اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا درس نظامی بھی کی ہوئی ہے, ماشاءاللہ حفظ بھی کیا ہوا ہے, یہ شوق سے کی تھی یا کیا وجہ تھی؟ اور خطبہ کس یعنی بہاف پہ دیتے ہیں کسی مسجدوں میں جا کے, مطلب وہ کیسے؟ یہ جو میں نے ایجوکیشن لی ہے نا, میں نے میٹرک کے بعد مجھے اچانک نا ایک پرابلم سا ہوا مینٹلی طور پہ. ٹھیک ہے. وہ کسی کی ڈیتھ کی وجہ سے نا مجھے بڑا ایک شوق لگا. صحیح. میں نے سوچا کہ یہ لائف نا بہت ہی بالکل ایسی ہے کہ جب جہاں چاہے ختم ہو سکتی ہے. مجھے اس نے بڑا نا ہارٹ کیا, جس کی وجہ سے میں فوری طور پہ ایک فیصلہ کیا کہ ایجوکیشن ریلیجیس ایجوکیشن کی طرف آؤں, تاکہ میں اپنے آپ کو نا مینٹلی طور پر بھی اور اسپرچولی طور پہ بھی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کروں. اور ویسے بھی میرے اندر یہ شوق پیدا ہو چکا تھا. ان دنوں میں ایک شخص بڑا فیمس تھا جس کو میں سن رہا تھا مختلف کیسٹوں کے ذریعے, اس کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری. اور باقاعدہ میں اس کے منہاج القرآن میں بھی گیا اور اس کے پاس ساتھ اعتکاف میں بھی بیٹھا, تاکہ مجھے نہ کسی جگہ پہ روحانی سکون ملے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. جبکہ میں ادارے میں بھی ایک ہمارے وہاں ایک بریلوی مکتبہ فکر کا بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں میں نے وہاں ایڈمیشن بھی لے لیا تاکہ میں اپنے کام کو جاری کر سکوں. اور مجھے بڑی مشکل سے اپنی شاپ سے یہ اجازت ملی, کیونکہ ہم باقاعدہ میں اس وقت کاروبار کر رہا تھا اچھا خاصا. میرا اس وقت ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تھا سویٹ بسکٹ کا, وہ میرا بڑا ڈسٹرب ہو گیا, اس لیے کہ میں نے سارا کچھ ایک دم چھوڑ دیا تاکہ میں ادھر آؤں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سکون دوں اور مائنڈلی طور پر فریش کروں اپنے آپ کو. یعنی کہ ایسا تھا کہ جیسے کہ میں کسی سائے کی تلاش میں ہوں کہ جہاں مجھے تھوڑا سا سکون ملے. صحیح ہو گیا. اور میں نے پھر 99 کے اندر نا یہ چیزیں جب میں نے حفظ کر لیا اور میں نے اس میں درجہ ممتاز کا کورس کر لیا, جس میں حدیث, تفسیر, فقہ اور صرف و نحو اور فارسی وغیرہ یہ مضامین ہوتے ہیں. یہ 4 سال کے اندر اس کو نا کمپلیٹلی پڑھاتے ہیں تاکہ ایک ورتھ بن جائے, جس کی وجہ سے وہ بیسکلی ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے وہ یا ریلیجیس تھاٹ یا ریلیجیس جو بھی ایک بیسک چیزیں ہیں ان کو سمجھ سکیں. اور یہ بریلوی مکتبہ فکر سے کیا؟ ہاں, بریلوی مکتبہ فکر سے کیا تھا, مگر 99 میں جب میرا آخری سال تھا مجھے ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسپیوٹڈ ہو گئیں, اور میں جو کنفیوز ہوا کہ یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں نا, مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایکچولی وہ چیزیں نہیں پڑھی جو میں نے صحیح طور پہ پڑھنی تھی اور جس کو میں نے لوگوں کو دعوت دینی تھی. کیونکہ مجھے کچھ چیزیں احادیث کی روشنی میں ایسی لگ رہی تھی جو کنٹروورشل ہے. مثلا یہ بزرگوں کو پکارنا, ان کی قبروں پہ جا کے ایسی ایکٹیویٹیز سارے دینا, یا اس کے علاوہ جس طرح لوگ حاجت روائی کرتے ہیں, جس طرح لوگ اشعار پڑھتے ہیں, قوالیاں ہیں, نعتیں ہیں, کیونکہ یہ ہمارا فیملی گراؤنڈ بیک گراؤنڈ اسی سے تھا. کیونکہ ہمارا گھر پیروں کا گھر تھا, قوالیاں ہوتی تھی, ہر مہینے نعت خوانی کا پروگرام ہونا, جہاں یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ ہم پڑھ کیا رہے کر کیا رہے. صحیح ہے. تو یہ پرابلم تھی. اور جب میں نے ایک حدیث پڑھی کہیں سے مجھے ملی, وہ حدیث تھی جو ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ حدیث ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی, اور اس نے مجھے اتنا اپنی طرف اٹریکٹ کیا کہ میں حیران ہو گیا کہ اس حدیث کے اندر تو امام کائنات کے یہ الفاظ ہیں, اور ہم اپنے اشعار میں, اپنی باتوں میں, اپنی نداؤں میں, صداؤں میں یہ بزرگوں کو پکارنا اور ان کے ساتھ حاجت روائی کرنا, یہ تو بالکل رانگ وے ہے. اور میں تو یہ خواہش تھی کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو ایکچوئل دین بتاؤں, اللہ, مگر یہ ایکچوئل تو ہے ہی نہیں. میں نے 8 سال 7 سال ضائع کر دیے. پھر ان لوگوں سے میرا اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے مجھے لاسٹ ایئر میری دستار بندی کر کے مجھے اسناد وغیرہ دے کے مجھے فارغ کر دیا. مگر میں اپنے سکون قلب کے لیے پھر میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی مسجد مزید لوں. مسجد اس وقت بھی میرے پاس تھی. بزنس چھوڑ دیا تھا, سارا کچھ چھوڑ دیا تھا آپ صرف؟ بزنس چھوڑا ہوا تھا, مگر بزنس پہ جاتا تھا 2 بجے. ٹھیک ہے. اور رات کا کام کرنا, مگر میں نے صرف خطبہ جمعہ دیتا تھا اور کوئی. ٹھیک ہے. یہ 96 سے شروع ہوا تھا. اور آپ کی اسٹڈی جو تھی دنیاوی اسٹڈی, وہ اس وقت چھوڑ دی تھی آپ نے؟ دنیاوی اسٹڈی چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اسپیشلی میں نے کتابوں کو سرچ کرنا شروع کیا. جب میں نے دیوبندیوں کی بہت ساری کتابیں منگوائی, مولانا سرفراز صاحب کی, الیاس گھمن صاحب کی, ان کی کتابوں سے مجھے توحید بڑی اچھی نظر آئی. میں نے کہا یہ تو بڑا ایکچوئل رستہ ہے یار. میں نے کہا یہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں.
मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो फिर वो जो वो तकलीद वाला जो मामला आया ना उसके ऊपर मैं फिर फंस गया यार ये क्या हुआ, हदीस इधर ये कह रही है, इमाम साहब का ये कौल है, और इमाम साहब तो कह चुके हैं कि जब मेरी बात कुरान और हदीस से टकरा जाए और मेरा क़यास और मेरी राय हो तो उसको छोड़ देना है, जी, उसको दीवार से दे मार रही है। चारों आइमा के जब मैंने कवाल पढ़े तो मेरे अंदर फिर एक तहर्रुक पैदा हुआ कि यार इसको तो चेंज होना चाहिए, बहुत जरूरी लाजमी, इसको मजीद इसकी प्योरिफिकेशन के लिए इसको मजीद इसको क्लासीफाई करके हम इससे बेहतर रिजल्ट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। फिर उसके लिए मैंने अहले हदीस मकतबा की किताबें भी पढ़ना शुरू की जिसमें तकलीद को मैंने मौजू बनाया और देखा कि इसके अंदर तो फिर मैंने उससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली कि यहाँ किताब व सुन्नत ही का मनहज बयान हो रहा है और तौहीद भी उससे बेहतर मिल रही है। तो मैंने फिर 2-3 साल देवबंदियों की मस्जिद में खुतबा देने के बाद वो भी छोड़ दिया। ये जो खुतबा देते थे फ्री ऑफ कास्ट देते थे? फ्री ऑफ कास्ट, अभी भी फ्री ऑफ कास्ट है, बल्कि हमारा ये सही वाल में मेरा ऐलान है कि कोई मस्जिद वाला मुझे खुतबे के लिए बुलाए मैं 5000 रुपया दूंगा उसको, माशाल्लाह, मगर मगर मुझे प्योरीफाई बात करने की इजाजत दी जाए। मगर किताबों के मुताबिक मुझे 5000 ले लो 10,000 ले लो, मगर मेरा एक खुतबा मुझे देने दो उस बात के ऊपर जो किताबों सुनना। अल्लाह, हाँ वहाँ मगर रॉन्ग जाऊंगा तो मैं डबल जुर्माना भी दूंगा। मगर बाज का तो लोग इसके ऊपर हंस के छोड़ देते हैं और बाज का मुझे 1-2 जगह पे मौका मिला मगर वहाँ लड़ाई शुरू हो गई, ये किसको बंदे को पकड़ गया यार 10,000 रुपया देता इस बंदे ने, वो बंदा फ्री सीगा, वो बंदा तनख्वाह ले रहा था। अगर 1 साल का मैंने कहा अगर मुझे कोई खुतबे के लिए टाइम देगा कोई ऐसी मस्जिद जो मेरी मर्जी की हो तो हम 2 लाख रुपए का चेक एडवांस देंगे पेमेंट पहले ले ले, खुतबे के लिए हमें बुलाए जी, जिंदाबाद। हाँ ये मेरा ये दस्तूर रहा है। फिर हुआ ये कि ऐसा हुआ कि मैंने फिर जब देखा कि मुझे बरेलवियत ने भी और देवबंदियत में मैं उनको एक्सक्यूज कर चुका, फिर मैंने अली भाई की तरह इस तरह गुजरांवाला से बहुत सारी चेयर्स मंगाई, डाइस माइक ये वो सारा कुछ मंगाया कि मैंने तो काम करना है, मैंने पढ़ाई की है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 7-8 साल इसी तरह अकेडमी कुरान अकेडमी के नाम से शुरू करके लोगों के अकायद की सलाह करना शुरू की, सुन्नत और बिदअत के ऊपर लेक्चर दिए, यहाँ तक कि मैं 2-3 किताबें लिखी, पैकर रहमत और खुल्के रसालत, ला नबी आबादी, ये मेरी किताबें भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट की फ्री ऑफ कास्ट, कोई नहीं, लोगों को भी दी, उलमा को भी दी। और इस तरह फिर मुझे गाहे बगाहे 2-3 साल 4 साल मैंने अहले हदीसों की मस्जिद में भी खुतबा दिया और अब अहले हदीसों की मस्जिद में दे रहा हूँ। अब उनके साथ मेरा ये प्रॉब्लम आ गया है कि वो उनके अंदर नासबियत कूट के भरी हुई है। अच्छा। और मैं वहाँ अली और हुसैन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिलाफत थी उस मिनहाज के ऊपर जब गुफ्तगू करता हूँ और इन लोगों को कंडेम करता हूँ कि उन्होंने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचाया है और ये वो लोग हैं जिनको तुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हो, अगर इसको क्लासीफाई किया जाए तो ये उस कैटेगरी में नहीं आते, वो तो सहाबे शजरा थे और साबिक़ून अल-अव्वलून थे, दूसरे तो मुनाफिकीन भी जिक्र किए गए हैं कुरान के अंदर और तीसरे वो मिले जुले अमाल वाले भी हैं। और इन्होंने तो बिल्कुल बाकायदा प्री प्लान इस्लाम को डिमोलिश करने के लिए हर तरह से इन्होंने अपनी कार्रवाई की है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने हर जगह इनका पीछा किया है। अल्लाह, आप जिधर भी जाएंगे ना और जिधर भी ये चालें चलेंगे, रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने जरूर बेनकाब करती हुई दिखाई देगी कि ये वो लोग होंगे और उनकी ये कार्रवाइयाँ होंगी और इस तरह लोग अपने अकीदों के और अपने ईमान का जाली तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मगर राइट वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर वादे कर दिया है। तो क्या कहते हैं, मान गए फिर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दलेरी के साथ वहाँ फाइट कर रहा हूँ कि मैं शिया ने अली हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनके साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बाजू मुझे पकड़ा के गए हैं ज़दीर खुम के ऊपर। बेशक। और अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफ़िक। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अली मिन्नी व अना मिनहु। और ये सारी चीजें हमें ये बयान करने दे रहे हैं वो आपको स्टेज से? बयान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा पैसे दे के उनको भी? क्या उनको भी पैसे दिए? उनको पैसे नहीं दिए। उन्होंने तो मुझे देखा कि 3-4 जुम्मे न पढ़ाए, मैंने फोन किए, फिर क्या बंदे यार टूट गए हैं हमारे लोग जो आते थे, उन्होंने कहा हम तो इसके पीछे जुम्मा नहीं पढ़ेंगे। मैं कहा मुझे कोई भाई परवाह नहीं है, पढ़े या ना पढ़े, मैंने तो यहाँ मिंबर का जो तकद्दस है उसको पमाल नहीं होने, जो किताबों सुन्नत का पैगाम है मैं इस मिंबर पे देने पर पाबंद हूँ, वरना मुझे मैं अभी एक्सक्यूज करके छोड़ता, मुझे क्या जरूरत है। सही है, सही है, बिल्कुल। अच्छा, जीनी साहब कब आए लाइफ में, इनका तारुफ कैसा? अच्छा, एक और बात बड़ी जीनी साहब से मेरी मिलती जुलती है कि मैंने बकायदा जब देखा ना कि मस्जिदें, अब मैं इधर उधर कहीं भी, मगर मेरा प्रोग्राम तो देना था, क्योंकि जब मैं मदरसे गया था ना तो मैंने वहां एक बात की थी,
वो मुफ्ती साहब ने जब मेरा एक पर्ची काटी है ना कि ये आपने दाखिला लेना है, मुझे देख के कहते शेख साहब खैर है। मैंने कहा जी इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। उसने मुझे इस तरह देखा कि यहाँ तो बच्चे आते हैं कि चलो पढ़ भी जावांगे तो पल भी जावांगे, तो तो बंदा नवी गल सुना रहा है तो साड़ी भी सोच गल लेगी। मतलब ये कि ये भी मैंने बात की कि इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। सही हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरे पैशन के साथ हम अपना पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं माशाल्लाह, और बेखौफ होके। मगर इंजीनियर साहब ने उसके अंदर एक नई रूह फूंकी है। इंजीनियर साहब का पता लगा लाइफ में कैसे आए उस वक्त? आपका कीदा क्या था? देवबंदी थे, हदीस थे, बरेलवी थे? मैं 2008 के अंदर जैसे इंजीनियर साहब ने इधर शुरू किया, 2008 की मेरी वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़ी है और उसके ऊपर मेरे कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि साले स्वाब की शरई हैसियत व मरवजा रसूमात। अच्छा, दुआ सिर्फ अल्लाह से। माशाल्लाह, आपने भी हाँ जी ये अपनी तरफ से की हुई है? नहीं, वो मेरे यानी टॉपिक होते थे। मैं वीकली अपने घर में, जिस तरह इतवार को ये मेरा फ्राइडे, मेरे लॉन के अंदर कुर्सियां लगा के, माइक डाइस लगा के, मीडिया लगा के वहां हम बैठते थे, उनकी चाय, एंटरटेनमेंट, खाना शाना, ताकि लोग आए। अल्लाह अकबर। और लोग माशाल्लाह 60-70 अफराद की गैदरिंग हर हफ्ते होती थी और उसमें लोगों के अंदर बहुत चेंजिंग आई। स्पेशली जो मेरे वालिदैन थे, मेरे वालिद साहब थे, मेरे भाई थे, मेरी फैमिली थी, उनको तो मैं बकायदा इनवाइट करता था कि मेरे प्रोग्राम में आओ यार, तुम्हारे आने से लोग बढ़ेंगे और लोगों देखेंगे, और वो सारी चेंज हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर वो जो बरेलवियत थी, आज वो जो कब्र परस्ती थी, पीर परस्ती थी, आज उनसे वो बहुत दूर हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो रफ़ाल जुदैन के साथ नमाज पढ़ते हैं। दावत का काम जब आपने शुरू किया, जो आप बता रहे हैं, मेरी भी वीडियोस रिकॉर्ड है 2008-9 में, तब तक आपने अपनी वो जो अपना एक दीन का एक जो फैसला करना था आपने कि मैंने किस तरफ जाना है, कौन सी लाइन लेनी है और कितना मैंने नॉलेज हासिल करना है, बेसिक नॉलेज आपको हासिल हो गया था, रास्ता नजर आ गया था तब तक? आप रास्ते में कुछ चीजें धुंधली थी और स्पेशली जो चीजें धुंधली थी ना, तौहीद बिल्कुल करेक्ट हो गई माशाल्लाह, सुन्नत के ऊपर बड़ी गिरफ्त हो गई माशाल्लाह, बिदअत को समझ लिया कि जो लोगों ने आप एक दूसरे को धोखे दिए हुए बिदअत के नाम पे और तौहीद के नाम पे, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को बुजुर्गों की कहानियां और इधर उधर की चीजें और हदीस का गलत मतलब, जैसे कि वो हदीस बहुत सुनाई जाती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, हालांकि ये किताबुल इल्म की हदीस है, उससे मुराद ही कुछ और है, मगर इसको बुजुर्गों के ऊपर और दीगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुताबिक भी इस तरह की चीज़ें मिला के, और इल्म गैब के ऊपर भी वो चीज़ें आपको पता है कि ये उस कुल्ली इल्म गैब मा काना व मा यकून का इल्म, ऐसी जो फरसूदा अकायद जो मुख्तलिफ लोगों के और बड़ी बड़ी शख्सियात की तरफ से, खास तौर में अहमद रजा खान बरेलवी हो गया, अशरफ अली थानवी हो गया, कासिम ननौतवी हो गया, इन चीज़ों की वजह से भी वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर सामने आ गई कि ये सारी चीज़ें एक ख़ास तबका है जो नक्काल है और सूफियों से ये लिया हुआ है। और मैं ये समझता रहा बड़ी देर तक कि इस्लाम के जो सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए हैं जो लोग, वो सूफी हैं कि कभी भी उन्होंने इस्लाम के लिए ना आवाज़ उठाई है, ना जिहाद किया है, ना उन्होंने ऐसी कोई जमात तैयार की है जो वाकई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज के ऊपर काम कर सके और हक के लिए कोई ऐसी जमात तैयार हो सके जो वाकई अपनी ज़िंदगियों को कुर्बानी से इबारत करके लोगों के लिए वो अकायद और नजरियात लेके आ सके जो किताब और सुन्नत की हैं। और सबसे बड़ी रुकावट ये हमारे दरमियान सूफी बने और इन्होंने कोई किताब लिखी है तो वो सिर्फ तसव्वुफ की नाम पे शायरी की किताबें लिखी है, दीवान लिखे हैं, वो सब के सब किताब और सुन्नत के साथ मुतसादम है। और जिन्होंने हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, मुसलमानों के अंदर ऐसे फरसूदा और अकायद की बुनियाद बने हैं जिससे आज तक हम नबर्द जुमा हैं और जिसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं और जिससे आज तक हमारी नस्लें गलत अकायद की वजह से हमारे बुजुर्ग कब्रों में चले गए। अल्लाह हो। अच्छा, वापस आते हैं 2008-9 में आपने भी रिकॉर्ड करवाए प्रोग्राम अपने घर में। जी जी। तो हम बात करते हैं कि इंजीनियर साहब तक कैसे पहुंचे? मुझे नहीं पता था। मैं उस वक्त भी बुजुर्गों की जो कहानियां थी ना उनको डिस्कस करके लोगों के सामने मजाक करता था कि देखो ये क्या है। अल्लाह। मुझे एक दोस्त ने बताया कि शेख साहब, डॉक्टर साहब, जो आप बातें करते हैं आपको पता ही नहीं है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, वो बड़े फेमस हैं, वो वही बातें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। ये कौन से सन की बात है? ये 2022 की बात है। अच्छा, ये अब तक आपको नहीं पता? मुझे पता ही नहीं। आप अपने लगे मैं अपने ध्यान लगा यकीन करें। तो सोशल मीडिया से ताल्लुक कौन नहीं था? देखते शेखते कौन थे वीडियोस वगैरह? यार नेट सेट देखा हो कभी? नेट सेट जरूर, मेरा ख्याल कुछ शगफ नहीं था,
इतना अच्छा जितना इस वक्त है। तो कभी किसी से सुना भी नहीं, आपका तो ये सुना- काम भी था, आप तो खुतबात भी देते थे। डॉक्टर सरार, डॉक्टर तारुक कादरी और नहीं है, पिछले 4-5 सालों में इंजीनियर का भी तो एक पूरा आपको पता है, 2000 हाइप तो क्रिएट हुई भी है ना। 2022 में जब सुना और सब्सक्राइब किया और देखा तो मैंने कहा वल्लाह, फिर मैंने अपने भाइयों को बताया कि भाई वही बात हो रही जो हम 10 साल से कर रहे हैं, वही बात हो रही है। देखो ये क्या हो रहा है, कश्फुल वजूद का मैंने ऑपरेशन किया था, मैंने कहा ये तज़किरतुल औलिया का ऑपरेशन मैंने किया, हश्र बिश्त का मैंने किया, तज़किरतुल गौसिया का मैंने किया। ये सारी किताबें जाली और घड़ी हुई किताबें हैं, ये सब किताबों सुन्नत के खिलाफ हैं। एक एक आयत को उठाते जाओ, ये सारी चीजें आप एक सफा भी इससे प्रूव नहीं कर सकते कि ये कुरान और हदीस के मुताबिक, चाहे कश्फुल मौजूद मैंने क्यों हो, हालांकि लोगों के अंदर इसका कितना गेटअप बनाया हुआ है। फिर वो अहकाम शरीयत अहमद रजा खान बरेलवी की मैंने टिक लगाए हुए थे 40, 50, 60 के, ये सारी रॉन्ग बातें हैं, जिसमें देखे ना वो बात लिखी हुई है कि आसमान और जमीन को ये गौसों ने थामा हुआ है, हालांकि कुरान की सूरह फातिर में अल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्द, ये हदीस मौजूद, ये कुरान की आयत मौजूद है कि बेशक अल्लाह ताला ही है जब जमीन और आसमान को थामने वाला, कि वो टल न जाए, अगर वो टल भी जाए तो उसके सिवा कौन है इसको थामने वाला? अल्लाह। वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। सही होगा। इंजीनियर साहब का तारुफ हो गया, आपको नजर आ गया, तो ये तो मेरे से नेक्स्ट वर्जन आ गया है। मैं तो जो दावत दे ही दे रहा था, अब तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, अब तकलीफ का ये आलम हो चुका है। ठीक है कि अब तो बस इधर से इंजीनियर साहब के थपकी लेने आया हूँ कि मैं ये सवाल भी यही लिखा है कि आपके पैटर्न पे काम करने के लिए मुझके लिए आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं? हम इसके लिए हाथ हौला रखें, नॉर्मल रखें? अगर आप कहते हैं बाबे तो शह कोई नहीं, तो असी इन्होंने इस तरह कहिए कि बाबे ताड़े भावें शह बड़ी ने, मगर याद रखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताड़े सामने ऐस कॉल और ऐस सुन्नत के थ्रू आ रहे ने, ए ताड़े बाबे लेके आ रहे हैं, हुण तुसीं फैसला कर लो नबी ना जाना चाहिए कि ना जाना चाहिए। सही होगा, सही होगा, सही होगा। और जो फिरका परस्ती की लानत और जिसमें इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्अन लस्ता मिनहुम फी शै, उसमें भी इसी तरफ इशारा है कि नबी तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम अपने फिरके के साथ जा रहे हो, बदबख्तों में तुम्हारा नबी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। सही बात, बिल्कुल सही। नबी से ताल्लुक ना रहने का फतवा अल्लाह ने इसलिए दिया है कि तुम्हारा ताल्लुक इसलिए नहीं है कि तुम अपने बाबे और बुजुर्गों और अपने मसनूई अकीदों के साथ जा रहे हो नबी का साथ छोड़ के, इसलिए इतना सख्त फतवा है। बिल्कुल सही। चलो जी, आज इंशाल्लाह होगी इंजीनियर साहब की मुलाकात भी होगी, और अच्छा लगा। इंजीनियर साहब से मेरी मुलाकात हाथ मिला के भी ना हो तो मैं वैसे भी उनको देख के चार्ज हो जाऊंगा क्योंकि कुछ चीजें होती है स्पिरिचुअली जो बंदा खुद उसको डीराइव कर लेता है जब किसी के सामने बैठता है। और माशाल्लाह मैं कहता हूँ इतना बहादुर, दलेर, हिम्मत वाला, मैं कहता हूँ पहाड़ों से ज्यादा हिम्मत है इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली की। अल्लाह हो। क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं उनकी टांगें, उनकी कांपे टांग गई है मैं ये कहूँगा, इसलिए कि उनके जाली फतवे, जाली मदरसे और जाली चंदे उन्होंने साबित कर दिया है कि इन्होंने नकाली की है सिर्फ अपने बड़ों की, इन्होंने दीन को पढ़ने की, समझने की और नबी की उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और जिसका नुकसान आज हमें हो रहा है कि हम लोग राह हक के मुतलासी हैं, लोग प्यासे हैं। बिल्कुल ऐसे। यकीन करें आज ये वो चश्मा है जिसने पाकिस्तान के पूरी दुनिया को तौहीद और सुन्नत के वो पानी से सैराब कर दिया है कि लोग मज़ारों की तरफ नहीं अब जा रहे, अब लोग मिर्जा इंजीनियर के पास आ रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन जानिए इस सदी की बहुत बड़ी करामत। और मैं सोचा करता था कि पता नहीं ये लोगों को क्या बनेगा जिनको लोगों ने कहानियां कराई हुई हैं और शिरक के ऊपर और बिदअत के ऊपर मर रहे हैं, इनका क्या बनेगा। मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा सोशल मीडिया के जरिए इनकलाब आ जाएगा कि एक गांव में और एक झोपड़ी में बैठा हुआ शख्स भी मिर्जा इंजीनियर जैसे लोगों को सुनकर अपनी सलाह कर लेगा और अपने घर वालों को कहने पे मजबूर हो जाएगा कि इन पीरों से जान छुड़ाओ, अल्लाह की चौखट पे खड़े हो जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आ जाओ। यही तरीका और यही रास्ता हिदायत का रास्ता है, यही रास्ता कामयाबी का रास्ता है। बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग आते हैं, हजारों बल्कि लाखों लोग अब तो होकर जा चुके हैं। और यकीन करें कि आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। फेरी वाले भाई
मेले ठेलों पे ये सामान लगाने वाले भाई, जिंदगियां बदल गई उनकी। अब इनको क्या बेचारों का नॉलेज था, क्या एक्सपीरियंस था, क्या उनका लाइफ स्टाइल है कि उन्होंने कभी किसी से कुछ चीज सीखी हो। लेकिन वही बात है कि बस एक बात जी का तारुफ हो गया। यकीन जानिए, कोई घर में खाना, किसी की दावत हो रही हो, किसी शादी पे बैठे हो, किसी मंगनी पे बैठे हो, और किसी भी जगह पे चार दोस्तों की गैदरिंग हो, इंजीनियर साहब की गुफ्तगू के बगैर या उनका टॉपिक डिस्कस किए बगैर ना मजलिस शुरू होती है ना खत्म होती है। ऐसा ही है, ये हालात हो चुके हैं। बिल्कुल एक बुर्की यानी एक टुकड़ा मुंह में है, इंजीनियर साहब की बात हो रही है, दूसरा बंदा उसकी तारीफ यूं कर रहा है, तीसरा बंदा अपने व्यूज बयान कर रहा है। बिल्कुल कोई दलेर कह रहा है, कोई कह रहा है इंटेलेक्चुअल कह रहा है, कोई कह रहा है यार बड़ी बात है यार, एक मदरसे च ना जाने वाले बंदे ने पूरी अंपायर उठा के ला देती है जी। कोई शक नहीं। चलो जी, अच्छा। और ये इंशाल्लाह ताला आपकी आखिरी बात, ये अपने चंदों के साथ, अपने फिरकों के साथ और अपने जल्द यकीदों के साथ बहुत जल्द दफन होने वाले हैं। हो गए दफन। और एक बात और भी है, मेरी ये प्रेडिक्शन है, मैं बता देना चाहता हूँ। जिस तेजी के साथ ये नौजवानों का शऊर आ रहा है और जो इन्होंने इनकलाब पैदा करना है ना, इंशाल्लाह आज से 10 साल बाद ये मस्जिदों के बाहर से जब लिखा होता है ना, ये जमाते अहले सुन्नत बरेलवी, ये खुद बरेलवी के ऊपर कांटा लगा के उसको साफ कर देंगे, देवबंदी भी खुद साफ कर देंगे, अहले हदीस वहाबी भी साफ कर देंगे। इसलिए साफ कर देंगे कि इनकी अवाम ही इनसे पूछेगी कि भाई हमें फिरका नहीं चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। अगर आपने इस मंबर पे बैठना है ना, हमें फिरका नहीं चाहिए, हमें इस्लाम बताओ, किताब और सुन्नत के मुताबिक दलाइल दो, वरना चलो घर में जूता पहनो, घर चलो। तुम्हारे जैसे जाहिल अनपढ़ रोटी कमाने वाले और ये रोटियां कठिया करने वाले हमें नहीं चाहिए। हमारी नस्लों का मसला है, हमारी आखिरत का मसला है, ये लोग बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि अब अवाम इनके सवाल करेगी। और ये जो मुफ्ती गले फाड़ फाड़ के बातें कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला इनकी मौत बिल्कुल करीब है। इनके मदरसों में बच्चे दाखिल नहीं होंगे। ये लोगों के घर में दरवाजे खटका के पूछेंगे कि यार आपके घर में कोई बच्चा है, हमारा मदरसा इसमें खाली पड़ा है और आप इसमें दाखिल करा लो। वो कहेंगे जाओ यार ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी हाथ दुआएं। ये आलम होने वाला है, ये इनका हाल होने वाला है, क्योंकि ये दीन के गद्दार हैं, नबी के गद्दार हैं, ये कुरान के गद्दार हैं। इन गद्दारों को अल्लाह ताला ने किसी न किसी मर्दे के अंदर को तो पैदा करना था जिसके जरिए इनको सजा देनी, और वो सजा इनकी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीखे लोग सुन रहे हैं। वो समर तारी को मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ, उसको शर्म आनी चाहिए। वो बापू के दफा में ये कह रहा है, पै गए तड़े पीरा नू, पै गए तड़े पीरा निकलो, तो तड़े पीरा पै गए जी। उसको अगर दीन की जरा भी समझ होती तो वो पता क्या कहता, वो इनको कहता कि वो तुम्हारे नबी का तारफ करा रहा है और नबी की तरफ चलिए, नबी के पास चले। वो तो कहते हैं उसके पास चलो जिसकी कब्र मदीने में। बल्कि मैं कहूँगा उन्हों कहूँगा कि नबी का रास्ता ही हकीकी रास्ता है। बेशक चलो, बल्कि ये कहूँगा कि ओए नबी नू पै गई, ये सारे नबी नू पै गए। सही बात, यानी बापों की किरदार से तो बापों की निस्बत और माल की कमाई और हराम की कमाई से नबी को पै गए और छड़ाओ इन्होंने नबी को। अल्लाह, ये तो इनके चीखे इनकी सुन रहे हैं। अल्लाह, इंशाल्लाह ताला ये कामयाबी अब हमारे दरवाजे पे है। मगर आखिरी बात सर, जी, हमेशा इनकलाब किसी बड़े स्टेप से आता है, जुर्रत के साथ आता है, जान पर खेलने से आता है, आंखों में आंखें डालने से आता है, और पूरी तरह मुस्तइद होके इल्म की ताकत से जब कोई लड़ता है ना, तो फिर उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। और मैं कहता हूँ इंजीनियर साहब की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, और उसके सामने क्यों नहीं कोई खड़ा हो सकता, और कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि इंजीनियर के साथ अल्लाह की किताब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। जी, अब दुनिया के सारे लोग मिलकर भी नबी की हदीस को जुटलाना चाहे या उसके खिलाफ कोई अकीदा लाना चाहे, वो कामयाब नहीं होंगे। कुरान की एक आयत को हम बच्चा भी पढ़ा दे और वो कुरान का वही तर्जुमा लिखा हुआ हो
दुनिया का कोई मुफ्ती और मौलवी उसको बदल नहीं सकता। और यही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है कि उन्होंने कहा कि आओ कुरान और आओ सुन्नत की तरफ, अल्लाह के कुरान की तरफ और नबी के फरमान की तरफ हो, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे पैटर्न पे जो भी काम करेगा अल्लाह की तईद और मदद उसे जरूर हासिल होगा। चलो जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।